Next, see some more problems of series and parallel. ये CBSE बोर्ड में आया था क्वेश्चन. Calculate the current drawn from the battery in the given network. इससे इस नेटवर्क में करंट आई कितनी विड्रॉन होगी. तो ये हमने कैपेसिटर में भी बताया था कि दिस वी कैन रीड्रॉ एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज. तो दिस आर्म इज P Q एंड दिस इज R and S. So P by Q रेशियो अगर R by S के इक्वल है तो इट इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. देन 5 ohm is meaningless. So here P by Q is R by S. P by Q is half and R by S is 2 by 4. Again it is half, so it is balanced Whitson bridge. So 5 is meaningless. So it is a balanced Whitson bridge. So we can remove 5 ohm resistance. 5 ohm remove हो गया. Now 1 and 2 in series and 2 and 4 in series. तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया and both are in parallel. तो 3 into 6 by 3 plus 6, so it is 2 ohm. So combined resistance is 2 ohm. So Ohm's law I is V by R. So 4 by 2, that is 2 ampere is the answer. It's all right. Next ये भी CBSE बोर्ड में आया था. This is the diagram. ये 5 resistance. Point A is here, B is here. Find equivalent resistance. RAB निकालना है यहाँ पे. RAB and the current flowing in AFCEB. Current flowing in AFCEB. इस पार्ट से करंट कितनी फ्लो कर रही है. That we have to calculate. If a battery of 4 volt is connected between A and B, 4 volt is connected between A and B. So actually na, this is also a balanced Wheatstone bridge. If we remove A like this and B like this, A and B को ऐसे remove करेंगे तो A is like this and B is like this. तो A इधर आ गया, B इधर आ गया, ठीक है. ये R आ जाएगा, ये R3 आ गया और एक R इधर आ गया और एक R इधर आ गया और ये पॉइंट A and F सेम है. बीच में रेसिस्टेंस नहीं ना, A is same. So A and F is same. Similarly B and E is same. So B and E is same. Now you see that it is a balanced Wheatstone bridge. P by Q is R by S. So this is meaningless. So this 2 series 2R, these 2 series 2R, 2R and 2R parallel. So final first answer equivalent resistance becomes R. So RAB is R. Now second part, current through AFCEB. We have to find the current through AFCEB. So AFCEB current इधर से कितनी जाएगी. I is the current coming. तो इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, तो I by 2 डिवाइड हो जाएगा ये. So current I is equal to Ohm's law V by R. तो current through ABC will be I dash is I by 2. And what is I? I is supply voltage is V. तो V by equivalent resistance is R. So final answer I dash is V by 2R because I is V by R. So this is the answer. ठीक है. This question was also asked in CBSE board. Next question for competition. What should be the value of R? What should be the value of R so that the total resistance of the network shown is 2R? So net resistance is 2R. ठीक है. Now you see that these two are in parallel and these two are in series and then these two are in parallel and then this is in series. So these two are in parallel. 6 into 12 by 6 plus 12, ठीक है. And these two are in series R plus 1 and now these two are in parallel. So R1 R2 by R1 plus R2. So 6 into 12 by 6 plus 12 R plus 1 R1 R2 by R1 plus R2. Clear हो गया ये. And then plus 4. This is plus 4 and net resistance is given in question 2R. So it is 2R. Now 4 को इस साइड ले जाएंगे, 2R minus 4. And this is what 4 आ गया. 4 into R plus 1. ये 4 plus R plus 1 have a cross multiplication. We will get a quadratic equation. R square plus R minus 12 is 0. So this can be factorized. R square plus 4R minus 3R minus 12 is 0. So this becomes R minus 3 into R plus 4 is 0. So R is 3. R is minus 4. Resistance and capacitance is never negative. So this is meaningless. So R is the 3 ohm is the answer. Next type question. You see that all the question I will be explaining will be different type. So what will be the equivalent resistance between the points A and D? A and D के बीच equivalent resistance कितनी होगी है. तो A and D, if we join A and D, then this part is out of circuit. This part is out of circuit. It's all right. So if we join this, तो जैसे ही out of circuit हो गया तो ये meaningless है, ये हट गया वायर. This wire is also meaningless, ये हट गया.
तो अब ये कॉर्नर से दो लाइनें हैं, 10 and 10 सीरीज 20, 10 and 10 सीरीज 20, 20 20 पैरेलल 10, so 10 10 and 10 in series, so 30 ohm is the answer. So this is 10 ohm and this is 20 and this is 20 parallel and this is 10, so final answer is 30 ohm. Now see that NCERT problem, find the current drawn from the circuit. ये बैटरी है, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम है, ये 12 वोल्ट है, ये 111 के सारे, ये इन्फिनिटी तक जा रही है. फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितनी करंट आएगी. दिस टाइप क्वेश्चन वी हैव डन इन कैपेसिटर ऑल्सो, एक प्रॉब्लम वहाँ भी कराए थे. ये लैडर प्रॉब्लम की यही कंसेप्ट है. मैंने बताया था जो चीज़ रिपीट हो रही है वो एक बार लिख देना. ये प्रॉपरली देखो 1 1 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है तो एक बार प्रॉपरली लिख देना, ये 1 1 1 1. अब ये मैंने बताया था लेट टोटल रेसिस्टेंस x है, फिर ऐड करेंगे x है, फिर ऐड करेंगे x है, फिर ऐड करेंगे तो x है. तो ये 1 1 1 हो गया ये, और एक लेट इट इज x. अब फिर इसको ऐड करेंगे फिर x आएगा. नाउ दिस टू आर इन पैरेलल, तो x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1, और फिर ये तीनों सीरीज, तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये पैरेलल प्लस 1, एंड देन अगेन वी विल गेट x. नाउ ये क्वाड्रेटिक, ये 2 इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वी विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज 0, और x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस 8/2, और x इज 1 प्लस माइनस रूट 3. सो वी विल टेक पॉजिटिव वेलोसिटी x, पॉजिटिव वैल्यू x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3, बिकॉज रेसिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव. इट कम्स आउट टू बी, ये 1.73 होता है, ऐड करके 2.732 ओम हो गया. नाउ नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, दिस प्लस 0.5 ओम, दिस प्लस 0.5 ओम आ गया. सो ना करंट ड्रॉन इज I इज V by R, तो टोटल रेसिस्टेंस 3.232, सो आंसर इज 3.7 एम्पियर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा. देखो ये बेसिकली क्या है, इसमें ट्रिक ये होता है कि देखो अगर यहाँ से करंट जाएगा तो ना इधर से करंट मान लो इधर से आएगा, इफ अ करंट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, इधर से आ रहा है तो इधर भी रेसिस्टेंस मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, बट इधर तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है. सो देयरफॉर द करंट विल फ्लो थ्रू दैट साइड इजीली वेयर देयर इज नो रेसिस्टेंस. ठीक है. तो ऑल द करंट विल गो थ्रू दिस साइड, तो इधर से कोई भी करंट नहीं जाएगा. एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस दिस ले या ऐसे ले वो सारा सेम है. देयर इज नो रेसिस्टेंस हियर, सो VA इज इक्वल टू VB, सो VA इज इक्वल टू VB, सो VA माइनस VB इज 0. सो रेसिस्टेंस R इज V by I, Ohm's law, V is 0 by I, so it is 0, 0 by something is 0, so equivalent resistance across this is 0. ठीक है, हो गया क्लियर. रीजन क्लियर है ना ये, क्योंकि ये यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो सारा करंट इधर से निकल जाएगा, इधर से जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो रेसिस्टेंस है तो वो उधर से क्यों जाएगा करंट, सारा इधर से ही जाएगा. Similar this question, similar type asked in JEE Mains 2018. In the given circuit, all the resistance of value R ohm is each R of R ohm. ठीक है. The equivalent resistance between point A and B के across equivalent resistance we have to find it. Now again you see that यहाँ से करंट आएगा तो इधर भी रास्ता है जाने का, इधर भी है और इधर भी है, बट करंट उधर से जाएगा जिधर कोई रेसिस्टेंस नहीं मिलेगा तो सारा करंट इधर जाएगा. फिर यहाँ से जाने के भी कई रास्ते हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ देखो रेसिस्टेंस नहीं मिल रहा तो सारा करंट इधर से जाएगा. फिर इधर जाने से करंट की रेसिस्टेंस इधर नहीं, इधर कोई रेसिस्टेंस नहीं मिल रहा तो सारा करंट इधर से निकल जाएगा. सो अल्टीमेटली करंट यहाँ से ऐसे आके यहाँ जाएगा. तो ये हो गया हमारा R, और इधर सीधा ऐसे आ गया, और ये R हो गया. R and R ये सीरीज में है तो R इक्वलेंट इज टू R. ठीक है. ये JEE Mains 2018 का क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पे था ये ऑलमोस्ट. नाउ दिस टाइप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन द रीडिंग ऑफ द एमीटर, एमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा. इफ यू रिमेंबर ऐसे डायग्राम 3 चैप्टरों में पढ़ना है, कैपेसिटर में भी मैंने कराया था. अगर ये ऐसे है और ये है, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करके आई हैव टॉट यू, उसमें ये तीनों पैरेलल आ जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3. सो हियर ऑल्सो रेसिस्टेंस, दिस 3 रेसिस्टेंस विल बी इन पैरेलल. तो इन पैरेलल में 1 by R इज इक्वल टू 1 by 24 प्लस 1 by 80 प्लस 1 by 40. ये सॉल्व करेंगे तो ऑल सॉल्व करके हमें आ जाएगा. एमीटर इज कनेक्टेड टू ब्रांच दिस,
तो टोटल रेसिस्टेंस हमारा आ जाएगा, अच्छा सॉरी, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू, सिंस दिस थ्री आर इन पैरेलल, इसमें टोटल रेसिस्टेंस नहीं फाइंड करना, फाइंड द करंट थ्रू 24 ओम। नाउ दिस थ्री आर इन पैरेलल, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, इसके अक्रॉस भी 24 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 24 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 24 वोल्ट। हेंस एमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा, ओम्स लॉ इज V by R, so 24 by 24, so 1 ampere it will show the reading. Is it all right? So this is the answer. It's all right. पैरेलल में वोल्टेज सेम हो गया, अगर एमीटर यहाँ लगा होगा तो ये 24 by 80 हो जाएगा, यहाँ लगा होगा तो 24 by 40 होगा। See some more different types of problems in series and parallel, little bit difficult one. And a uniform wire of resistance 18 ohm is bent in the form of a circle. ये पूरे सर्कल की रेसिस्टेंस 18 ओम है। ये फाइंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट्स x एंड y, x एंड y के अक्रॉस इफेक्टिव रेसिस्टेंस वी हैव टू फाइंड इट। ठीक है, तो यू सी दैट पूरा सर्कल 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री की रेसिस्टेंस 18 ओम है, तो 60 डिग्री की रेसिस्टेंस, दिस पार्ट वी कैन कैलकुलेट। तो ये कितना रेसिस्टेंस होगा, सो सी दैट सिंस 360 डिग्री एंगल हैज रेसिस्टेंस 18 ओम, hence 60 degree angle will have 18 by 360 into 60, that is 3 ohm. So total is 18, so this is 3, so remaining will be 15. Now this is in parallel, we have to find resistance across xy, क्योंकि एक एंड एक पॉइंट पे है, दूसरा एंड दूसरे है, तो that such is called parallel combination. So equivalent resistance rxy will be 3 into 15. So 3 ohm and 5 ohm are in parallel, so rxy is 3 into 15 by 3 plus 15, so 2.5 ohm is the answer. It's all right, so this is the answer. Next type question, question number 2, find resistance across AB. ठीक है, resistance RAB, these are the 4 options, so let us see this. देखो ये पहले भी मैंने कराया, ये कॉमन पोटेंशियल प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई रेसिस्टेंस नहीं होने की वजह से यहाँ से यहाँ की वोल्टेज सेम है, तो इट कैन बी कनेक्टेड हियर, सो दिस टू विल बी इन पैरेलल, सो R/2 हो गया। सिमिलरली यहाँ रेसिस्टेंस नहीं होने की वजह से दिस टू आर इन पैरेलल, तो ये भी R/2 हो गया। तो इक्विवेलेंट डायग्राम इसका ये हो गया, R/2, ये R/2 हो गया, R ऊपर था और ये R यहाँ पे और ये R/2 हो गया। ठीक है, now our aim is to find the equivalent resistance across AB. Across AB we have to find it. So these two in series, so 3R/2. These two in series, so 3R/2. दो इक्वल रेसिस्टेंस सीरीज में, तो R/2 होता है, तो 3R/2 by 2, so it will be 3R/4 हो गया, तो 3R/4 हो गया। It's all right. Next क्वेश्चन नंबर 3, देखो कई बार ना ऐसे वायर ऊपर से, व्हाट डज इट मीन, ये ऐसे सीधा नहीं जाके ऐसे ऊपर से जा रहा है, इट मीन्स कि ये वायर इसको टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो लेट्स सी दैट हाउ इट कैन बी सॉल्व। फाइंड RAB, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस AB। सो 4 options are given, 6 ohm, 16, 17 and 5 ohm. Now you see that ये वायर टच ऊपर से जा रहा है, इसको ऐसे खींच देंगे, ये ऐसे इसको खींच देंगे, तो you see that 6 ohm and 3 ohm are in parallel, ये ऐसे इसको पुल करेंगे, तो 6 ohm and 3 ohm are in parallel, क्योंकि देखो 3 ohm और 6 ohm दोनों का यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो कॉमन पोटेंशियल है, सो 3 ohm और 6 ohm एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है। ठीक है कि नहीं, तो 3 ohm और दूसरा एंड भी एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो इसलिए दोनों बोथ आर इन पैरेलल, सो 6 and 3 आर इन पैरेलल, सो इट इज 2 ohm। नेक्स्ट ये ऊपर पुल किया गया, तो 4 ohm and 12 ohm का एक पॉइंट, एंड ये 12 यहाँ रेसिस्टेंस नहीं होने की वजह से 12 और 4 का दूसरा एंड एक पॉइंट पे है, अगेन दिस 2 आर इन पैरेलल, 4 and 12 आर इन पैरेलल, सो इट इज 3 ohm। नाउ 3 and 2 आर इन सीरीज, सो द टोटल आंसर इज 5 ohm। रेसिस्टेंस अक्रॉस AB इज 5 ohm। It's all right. Now next, a little bit difficult question. All the resistors are of equal resistance. Find RAB when key is closed, and number 2 when key is open. देखो ये फर्स्ट केस में when key is closed, find resistance across AB, सबकी रेसिस्टेंस R है। ठीक है, अब जब ये स्विच क्लोज्ड है, की इज क्लोज्ड, क्लोज करने पे ये सारा कॉमन पोटेंशियल है। If you look very carefully, then one end of each resistance is connected with A and another end is connected with B.
See that. Looking carefully, one end of each resistance is connected to A and the other end of each is connected to B. Hence resistances are in parallel. अब देखो कैसे, ये रेसिस्टेंस 1 ओम है, ये भी ए से कनेक्टेड है, 3 ओम भी ए से कनेक्टेड है, 4 भी ए से कनेक्टेड है, 5 भी ए से कनेक्टेड है, 2 भी ए से कनेक्टेड है. तो एक एंड हो गया. अब दूसरा एंड 2 बी से कनेक्टेड है, ये भी बी से है, ये भी बी से, ये भी बी से और ये भी बी से. ठीक है. So all the 5 are in parallel. So hence equivalent resistance is R by 5. So this is the answer. Now next part. If key K is closed, ये suppose key K it is closed. अब close करने से क्या होगा? When key is open, when key is open, second case. When key is open, the current will pass through resistance 1 and 2 only, which are in parallel. अब देखो ये की को ओपन कर देंगे. जैसे ओपन करेंगे, सपोज करंट इधर से आ रहा है तो उसको जाने के रास्ते इधर भी है, इधर भी है, ऐसे भी है. बट इधर से क्या होगा, ये रेसिस्टेंस ऑफर करेगा और इधर रेसिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए सारा करंट इधर से निकल जाएगा. क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस मतलब ट्रैफिक मिल रही है इधर से, तो ये इधर से नहीं जाके इधर आएगा. करंट सारा यहाँ आ जाएगा, ना इधर से जाएगा, ना इधर से आएगा, क्योंकि इधर रेसिस्टेंस नहीं मिल रही है. ठीक है. अब ये करंट आएगा, कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से जाएगा. तो दिस टू आर इन पैरेलल, 1 and 2 इन पैरेलल. ठीक है. ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में, ये भी आर है. यू नो दैट ईच आर ऑफ आर, तो आर एंड आर पैरेलल, सो इट इज R by 2 इज द आंसर. आई थिंक इट इज इजी क्वेश्चन. दिस टाइप क्वेश्चन वी हैव डन इन कैपेसिटर आल्सो. फाइंड रेसिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी. तो देखो ये यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ रेसिस्टेंस नहीं है, तो ये भी बी से कनेक्टेड है, ये भी बी से और ये भी बी से. तो एक एंड सबका बी से कनेक्टेड है, एक एंड. और दूसरा एंड सारे यहाँ पे कॉमन एक पॉइंट पे, तो दूसरा एक कॉमन पॉइंट पे, फिर +2R, तो ये 2R हो गया. ये फाइंड रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी. दिस 3 आर इन पैरेलल, तो 6R by 3 एंड +2R. सो फाइनल आंसर इज 4R. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये 8, 6, 3, 7, 10, 4 है. फाइंड रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी. इफ यू लुक केयरफुली, दिस इज द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. 6 by 3 is 2, 8 by 4 is 2. So 10 is meaningless. So 10 हट जाएगा, ये meaningless हो गया. फिर 6 and 3 in series. So 6 and 3 are in series, 9 हो गया. 8 and 4 are in series. तो 8 and 4 are in series, 12 हो गया. फिर 9 and 12 are in parallel. तो R1 R2 by R1 plus R2 plus 7. So 85 by 7 is the answer. It's all right. Now let's see one more question, last question in series parallel, and remaining some question will be solved by Kirchhoff's law. Advanced IIT 2015 में भी आया था. In the following circuit, the current through the resistance R equal to 2 ohm is I ampere. Find the value of I. तो ये I करना है. We have to find the value of I. So this is the diagram. 1 ohm, 2, 8, 4, 2, 10, 4, 12, 6, 2. ठीक है. तो you see that ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है. 1 by 2 रेशियो हाफ, 2 by 4 हाफ है. 8 मीनिंगलेस हो गया, 8 यहाँ पे मीनिंगलेस हो गया, तो इसलिए बच गया 8 हट जाएगा. तो देखो ये 8 हट गया. 1 2 1 2 2 4 6 10 6 10 4 12 and 2. ये इसका एक नेक्स्ट इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया. Now you know that 1 and 2 in series, दो लाइनें निकल रही हैं. सीरीज 3 और ये भी सीरीज 6 and 3 in parallel, 18 by 9. तो ये 2 ohm हो गया. तो नेक्स्ट डायग्राम ये पूरा पार्ट अब 2 ohm हो गया. ये 6 10 है ही है, 6 10 12 4 as it is and 2 as it is. Next if you look properly, again further Wheatstone bridge is being formed here. P by Q is R by S. 6 by 2 3, 12 by 4 3. तो फिर ये बैलेंस है, तो ये 10 has been removed. 10 को रिमूव कर सकते हैं. तो ये हमारा बच गया 6 12 और ये 2 4 आ गया, और ये 2 है ही ऑलरेडी. नाउ ये दोनों सीरीज 18 और ये दोनों सीरीज 6, and 18 and 6 are in parallel. तो पैरेलल में R1 R2 by R1 plus R2, by solving it comes out to be 4.5. Now current in the circuit I is voltage 6.5 by resistance 2 by 4.5, 6.5. So answer, final answer is 1 ampere.